Hi guys, how are you all? I hope you all are doing great. So, welcome to our channel, Edulit Classes. So, guys, you must be wondering that till now we have only seen mathematics video in this particular channel, right? But from now onwards, you will see some English videos also. So, yes, guys, we are posting or we will be posting some English videos on RIMC previous year question papers from now onwards. All right. So, first of all, we will be solving the latest question paper of RIMC which held on 18 December 2021. All right. So, first of all, we will solve the section B, that is the grammar section of the paper. All right. So, let's get started. All right, beta. So, as you all know, the English RIMC English paper is of 125 marks and the timings are 2 hours. That means you will get 2 hours for solving the questions. All right. So in that paper, in this English paper, 70 marks is for reading and writing section and 55 marks is for the grammar section. Right. So yeah. So let's get started with the question number 8. All right. Yeah. So, what is the question number 8? Question number 8 says, each of the following has a grammatical error. The error could be in the form of an incorrect answer in any of the two ways shown in the box. In case of incorrect use of word, write the incorrect word followed by the correct word and its part of speech. In case of missing word, write the missing word followed by its part of speech and its location in the sentence. So guys, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, राइट? कि क्वेश्चन हमको क्या बोल रहा है, व्हाट द क्वेश्चन डिमांड्स. So see what the question is saying. In this particular questions, you are provided with some sentences. In that particular sentences, what you need to do, आपको उन sentences में ये देखना है that ये particular sentence में क्या incorrect use of word है या कोई मिसिंग वर्ड है, राइट? जिनसे इन सेंटेंसेस की मीनिंग अफेक्ट हो रही है, राइट? इन सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर, इन सेंटेंसेस की मीनिंग को अगर अफेक्ट हो रहा है फ्रॉम दैट पर्टिकुलर वर्ड, दैट मीन्स दैट पर्टिकुलर वर्ड इज इनकरेक्ट. और अगर वो वर्ड इस सेंटेंस में नहीं है, दैट मीन्स दैट वर्ड इज मिसिंग फ्रॉम दैट सेंटेंस. यहाँ पर आपको एग्जाम्पल भी दिया गया है. सी बेटा, what RIMC do? RIMC is a descriptive paper, right? So since it is a descriptive paper, so they focuses on your answer writing too, how you are writing your answers, isn't it? So they have given you the example that this is how you need to solve the answer. So you have to solve the answers, you have to write the answers in this particular way only. All right. Okay. So let's get started. First of all, see the example. What this example look like, or what does it say? So this is the example they have given you, right? What is this? They ran fastly. So what you need to do, you have to write first the incorrect word which is mentioned in this particular sentence, then the correct word which you need to write the correct form, the correct word, right? After that, it's part of speech, the correct words, part of speech. All right. So in this, the incorrect word, in this particular example, the incorrect word is fastly, right? So you need to write fastly here. You need to write the incorrect word and in front of that write fastly, right? Now which word will come here? यहाँ पे क्या word आएगा? यहाँ पे word जो correct word है वो है fast. So you will write the correct word like this. After that, write the correct word part of speech. That is, what is fat? Fat is a adverb. So write it down over here. So like this only you need to write. You need to do all the statements or all the questions, right? Okay. So another example is given for the missing words, right? See, Rita is my sister. We all love so much. So what is the missing word over here? The missing word is her.
Okay, and what is the part of speech of her? The part of speech of her is, it is a pronoun. Okay, and location, where does this missing word come? It will come between love and so. So write down like this, it will come between love and so in the inverted commas, right? So this is how you need to perform all the questions. All right, so I hope you all have understood how to solve this question. Okay, so let's start with the first question, that is, he is very happy as. Okay, फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस क्वेश्चन को इस सेंटेंस को अच्छे से पढ़ो और एनालाइज करो कि ये सेंटेंस क्या है और ये सेंटेंस से क्या मीनिंग निकल रही है, राइट? सो देखो, ही इज़ वेरी हैप्पी अस। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा, एक सेंटेंस क्या होता है, ठीक है? सो अगर हम सेंटेंस के स्ट्रक्चर की बात करें तो व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस? सो एवरी सेंटेंस हैज़ अ स्ट्रक्चर विच कंसिस्ट ऑफ what? Three things, right? And what are those three things? Yeah, you are right. What are those? Subject. Wait. Yeah. What are those? Subject plus verb plus object. Right? अगर हम इस सेंटेंस की बात करें तो what is he? He is a subject. What is a verb. And the very happy us is what? It is the object. Isn't it? ठीक है, अगर अब आपने स्ट्रक्चर वाइज समझ लिया कि एक सेंटेंस को हम एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, राइट? अगर हम स्ट्रक्चर से उस सेंटेंस को कैटेगराइज करें तो किस तरीके से कैटेगराइज हो सकता है? सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ओके, सो बेटा अगर हम पूछें कि व्हाट इज अ सेंटेंस, स्ट्रक्चर की है बात हमने कर ली। अगर हम पूछें कि व्हाट इज अ सेंटेंस इज अ group of words. Okay, so now the next question which arises is what are these words? ये जो सारे words होते हैं वो क्या होते हैं, ठीक है? So I think you all must be aware of all these words. बेटा जितने ये एक जो सेंटेंस है वो बहुत सारे वर्ड से मिलकर बना होता है, राइट? सो इन हर एक वर्ड की एक अलग मीनिंग होती है, ऑलराइट? हर एक वर्ड को हम कुछ ना कुछ कहते हैं। हर एक वर्ड आपका अपना एक रोल होता है किसी भी पर्टिकुलर सेंटेंस में। तो अभी हम यहाँ पर समझते हैं कि वो जैसे ये पर्टिकुलर सेंटेंस है तो इसमें like he is a word, is a word, very is a word, happy is a word and us is the word, right? So इस सेंटेंस में हम हर एक वर्ड के मीनिंग की बात करते हैं कि वो वर्ड को हम क्या कहते हैं, उसका मीनिंग क्या है, राइट? सो देखो, ही क्या है? ही इज अ pronoun. I think you must all know what is a pronoun, isn't it? Right? So what is a verb. What is very? Very is a adverb, isn't it? What is happy? Happy is a adjective, right? And what is us? Us is a objective pronoun. What is he? He is a subjective pronoun. I think you all are aware of all these words like these noun, pronoun, verb, adverb, adjective and all of that, isn't it? सो आपने अगर आप इनसे अवेयर हो, आपको पता है कि ये सारे वर्ड्स आपने कभी ना कभी इंग्लिश में पढ़े होंगे, राइट बेटा? सो ये सारे वर्ड्स को हम क्या कहते हैं? ये सारे वर्ड्स को हम कहते हैं पार्ट ऑफ स्पीच और इन्हीं के कॉम्बिनेशन से बनता है हमारा एक पर्टिकुलर सेंटेंस, राइट? तो अब आपको समझ आ गया होगा कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। जैसे कि क्वेश्चन में भी पूछा गया है कि पार्ट ऑफ स्पीच बताओ, किसी भी जो वर्ड मिसिंग है या जो वर्ड इनकरेक्ट है उसकी पार्ट ऑफ स्पीच बताओ, राइट? तो अब आपको समझ आ गया होगा कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या होती है, राइट? तो हर एक वर्ड की अपनी एक पार्ट ऑफ स्पीच होती है। लाइक ऑल दीज वर्ड्स आर नोन एज द पार्ट ऑफ स्पीच। क्या? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, ये सारे क्या होते हैं? पार्ट ऑफ स्पीच होता है। ओके,
अब आपको समझ आ गया कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, ठीक है। हर एक सेंटेंस में जितने भी वर्ड्स होते हैं उन वर्ड्स का एक पार्ट ऑफ स्पीच होता है, अपना एक रोल होता है उस पर्टिकुलर सेंटेंस में। अब आप इस सेंटेंस को देखो, अब हम एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि इस पर्टिकुलर सेंटेंस में क्या वो वर्ड मिसिंग है या कोई वर्ड इनकरेक्ट है, ठीक है बेटा। अभी मैं आपको ये सब कुछ इसलिए फर्स्ट सेंटेंस में इसलिए समझा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि आपको एग्जाम में किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है इनकरेक्ट वर्ड या मिसिंग वर्ड, राइट। ओके, सो देखो, ही इज वेरी हैप्पी अस, ठीक है। ही इज अ सब्जेक्ट, इट इज वेरी मच करेक्ट, इजंट इट? ये करेक्ट है, ओके। is the verb, it is also correct. Now see in the object part, very happy us, okay। बेटा आपको यहाँ पे दिखाई देगा ही इज़ वेरी हैप्पी। अगर सेंटेंस सिर्फ इतना होता ही इज़ वेरी हैप्पी, सो हमें एक कुछ सेंस तो मिल रहा है, राइट। हमें एक सेंस मिल रहा है कि वो बहुत खुश है। वी हैव नॉट स्टेटेड द रीज़न दैट वो क्यों खुश है, कहाँ खुश है, किसके साथ खुश है, ऐसा कुछ सेंटेंस में मेंशन नहीं है। आई एम टॉकिंग अबाउट अगर सेंटेंस सिर्फ इतना होता कि ही इज़ वेरी हैप्पी, ठीक है, तो हमें एक कंप्लीट सेंस मिल रहा है कि हाँ वो खुश है। उसके बाद हमें कोई लेना देना नहीं है कि आगे, क्योंकि सेंटेंस में कुछ मेंशन ही नहीं है आगे। लेकिन यहाँ पर इन द ऑब्जेक्ट पार्ट अस इज मेंशन्ड, ठीक है, यहाँ पे रीजन मेंशन्ड है, अस मेंशन्ड है, इसीलिए हमें सेंटेंस को फुल्ली देखना है, ओके। सो द सेंटेंस इज ही इज वेरी हैप्पी अस, ठीक है। जब ही इज करेक्ट, इज करेक्ट, दिस वेरी इज करेक्ट, हैप्पी अस, ना सी हैप्पी अस, आपको समथिंग विल लुक फिशी, इजंट इट? क्या है अब हैप्पी अस? आपको क्या लग रहा है कि यहाँ पे हैप्पी अस इज करेक्ट, राइट? नो, इट इज नॉट करेक्ट। क्यों ये करेक्ट नहीं है? ही इज वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश है। और अस, हमें यहाँ पर ये बताया ही नहीं गया है कि अस जो है किस तरीके से रिलेट कर रहा है, किसके साथ? हैप्पी के साथ, ठीक है। हम अस तो लिख दिया है, लेकिन हमें क्या, वो ही किसके साथ हैप्पी है, isn't it? So यहाँ पर to establish the relationship between these two words happy and us, what do we use in English? We use prepositions. What are prepositions? Prepositions are used before any noun or pronoun, ठीक है। prepositions को हम किसी भी noun या pronoun के से पहले यूज करते हैं, राइट, टू शो व्हाट? टू शो द रिलेशनशिप बिटवीन द पर्सन और थिंग डिनोटेड बाय द प्रीपोजिशन विद अदर्स, राइट। सो हियर वी विल यूज द प्रीपोजिशन। सो प्रीपोजिशन कितनी तरीके की होती हैं? बहुत सारी तरीके की होती हैं। लाइक आपने पढ़ा होगा इन, एट, बाय, फॉर, विद, ये सारी क्या होती हैं? आपकी प्रीपोजिशंस होती हैं। अब इनमें से हम कौन सी प्रीपोजिशन यूज़ करें, ठीक है, तो कौन सी प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे हम इनमें से? जो मोस्ट सूटेबल प्रीपोजिशन है जो हम इस सेंटेंस में यूज़ करेंगे वो है विद, ठीक है। तो यहाँ पर इस सेंटेंस में क्या है? मिसिंग वर्ड है, ठीक है। मिसिंग वर्ड क्या है? with. So we need to write like this, missing word, and write with in front of it, okay. So what is the correct, what is the part of speech of this word? It is a preposition, so write it like this, okay. Then write the correct sentence like this: he is very happy with us. With the use of with, you have to rewrite the sentence. Is it clear? So this is how you need to solve, you need to think and analyze in the examination and solve the question. Clear? Okay. Now move to the next question, that is, they won the trophy because they worked hardly. Okay. Now see, this particular sentence is made up of two sentences. You can see they won the trophy, they worked hardly. Okay. सबसे पहले आप ये देखो, इस सेंटेंस में क्या कोई एरर है? If yes, then we will correct it. ठीक है? See, this is the subject, this is the verb, and this is the object. They won the trophy. वो ट्रॉफी जीते, right? It is correct. Okay. Yeah. Now
क्यों जीते वो ट्रॉफी? बिकॉज दे वर्कड हार्डली. ठीक है, दे वर्कड हार्डली. सो इन दिस पर्टिकुलर सेंटेंस व्हाट इज रॉन्ग? We have a word hardly over here which is a wrong word, isn't it? ये क्या है? गलत word है. ये गलत word क्यों है बेटा? क्योंकि अगर हम कहते हैं they won the trophy, ठीक है, अगर हम कहते हैं they won the trophy, what does this mean? See, अगर मैं कहूँ दैट राम ने एग्ज़ाम में टॉप किया, इसका मतलब क्या है? उसने बहुत पढ़ाई करी होगी तभी वो टॉप कर पाया एग्ज़ाम में, या इसका मतलब ये है कि उसने कुछ नहीं पढ़ा होगा तभी वो एग्ज़ाम में टॉप कर पाया? क्या है इसका मतलब? इसका मतलब है कि उसने बहुत पढ़ाई करी, उसने बहुत हार्ड वर्क किया, दैट आफ्टर दैट ओनली ही वॉज एबल टू टॉप द एग्जामिनेशन, इजंट इट? सिमिलरली जब प्लेयर्स ने बहुत मेहनत करी होगी तभी वो ट्रॉफी जीत पाए, इजंट इट? सो हमें लिखना चाहिए था कि उन्होंने बहुत मेहनत की होगी, लेकिन यहाँ पर वर्ड लिखा है हार्डली. हार्डली का मतलब क्या होता है? What do you mean by hardly? Hardly is a adverb. First of all, it is a adverb. ठीक है, हार्डली एक एडवर्ब है. एडवर्ब का काम क्या होता है? एडवर्ब का काम होता है वर्ब को इंटेंसिफाई करना, वर्ब को डिस्क्राइब करना. ओके, सो हार्डली का मतलब क्या होता है? ऑलमोस्ट नेवर. ठीक है, हार्डली का मतलब होता है ऑलमोस्ट नेवर या ऑलमोस्ट नॉट एट ऑल. ठीक है, अगर हम यहाँ पर हार्डली यूज़ करते तो क्या होता वर्ड का सेंटेंस का मीनिंग? दे वॉन द ट्रॉफी बिकॉज दे वर्कड हार्डली. उन्होंने ट्रॉफी जीती क्योंकि उन्होंने ऑलमोस्ट नेवर या उन्होंने कभी काम ही नहीं किया, उन्होंने वर्क हार्ड ही नहीं किया कभी, इसीलिए उन्होंने ट्रॉफी जीती. सो इट इज़ प्योरली अ रॉन्ग. ये हार्डली यूज़ करने से देखो बेटा पूरे सेंटेंस का मीनिंग ही बदल जा रहा है, इजंट इट? सो हार्डली इज द रॉन्ग वर्ड. व्हाट इज द राइट वर्ड ओवर हियर? वी विल यूज हार्ड इन प्लेस ऑफ हार्डली. Okay, we will use what? We will use hard in place of hardly. Hardly is the wrong word. You will write incorrect word like this, and in front of it you will write hardly. Then what is the correct sentence? The correct word is they won the trophy because they worked hard. And what is hard? What is the part of speech of this word hard? It is a adverb. ऑल राइट, हमें करेक्ट वर्ड की पार्ट ऑफ स्पीच लिखनी है. तो व्हाट इज द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ हार्ट? हार्ट की पार्ट ऑफ स्पीच है एडवर्ब. ये एक एडवर्ब है. ठीक है, हार्ट का मतलब क्या होता है? हार्ट की बात करें तो हार्ट का मतलब क्या होता है? हार्ट का मतलब होता है अ लॉट. ठीक है, हार्ट का मतलब होता है अ लॉट. ठीक है, तो अब देखो सेंटेंस का मीनिंग बिल्कुल करेक्ट आ रहा है. दे वॉन द ट्रॉफी, उन्होंने ट्रॉफी जीती क्योंकि उन्होंने बहुत काम किया, बहुत हार्ड वर्क किया, इजंट इट? बेटा मैं थोड़ा सा आपको हार्डली और हार्ड के बारे में बताती हूँ. ओके बेटा, हार्डली क्या होता है? हार्डली का मतलब अब आपको पता चल गया, ऑलमोस्ट नेवर या नॉट एट ऑल, इजंट इट? ये मोस्टली हम वर्ब से पहले यूज़ करते हैं. क्या करते हैं? वर्ब से पहले यूज़ करते हैं, राइट? देखो यहाँ पे वर्ब के बाद है, लेकिन हम मोस्टली ये वर्ब से पहले यूज़ करते हैं. लाइक आई विल गिव यू द एग्जाम्पल. इफ आई से हार्डली शोन, right? So it almost most of the time it is used before the verb. It precedes the verb. All right, hardly shown कह लो या hardly trying. उसने बहुत मतलब ना के बराबर try किया, उसने ना के बराबर show किया, isn't it? So this is a adverb. It is used like this. Okay, and what is hard? Hard का मतलब क्या होता है? Hard जो है बेटा वो intensify करता है verb को. It most of the time it comes after the verb like this only. ठीक है, after the verb आता है. And like if I will give you the examples, then that examples are work hard, trains hard, isn't it? So this is the difference between the hard and hardly, right? Okay, so now move to the next question. The next question is, my friend is known for his wisely as well as
patience. Now see this sentence. Okay, see the sentence. My friend, subject, is verb, known for his wisely as well as patience. Right, is known as the verb, and for his wisely as well as patience is the object. Clear? Now my friend is okay, is known as okay. Now the word which has error is what? It is wisely. Yeah, correct. Wisely is the wrong word. Why it is wrong? Now see why it is wrong. I will tell you the reason that why it is wrong. Okay, see beta, see here. Wise, there is a word wise, another is wisely, and another one is wisdom. Okay, so what is wise? वाइस एक एडजेक्टिव है, राइट, जिससे मिलकर बना है वाइसली एंड विजडम. राइट, वाइस से मिलकर वाइसली बना है और वाइस से ही विजडम बना है. वाइस इज एडजेक्टिव, वाइसली इज एडवर्ब, adverb, and wisdom is a noun. It is used as a noun. ये वाइस के ही फॉर्म से, वाइस एक वर्ड है जिससे हम ये सारे वर्ड्स फॉर्म कर सकते हैं. मतलब वाइस का अगर हमें एडवर्ब की तरह यूज़ करना है तो हम क्या लिखेंगे? वाइसली लिखेंगे. अगर उसको नाउन की तरह यूज़ करना है तो हम विजडम लिखेंगे. आई होप इट इज़ क्लियर टू यू, राइट. सो सबसे पहले हम देखते हैं वाइस का मतलब क्या होता है. वाइस का मतलब बेटा होता है, वाइस एक एडजेक्टिव की तरह यूज़ होता है. तो आपको पता है कि एडजेक्टिव हम किसको कहते हैं? एडजेक्टिव हम कहते हैं उन वर्ड्स को जो कि नाउन को डिस्क्राइब करते हैं. राइट, जो नाउन के बारे में उनकी क्वालिटीज़ के बारे में हमें बताते हैं. राइट, नाउ एडवर्ब हम किसको कहते हैं? एडवर्ब हम कहते हैं जो वर्ब को डिस्क्राइब करते हैं. ठीक है. एंड व्हाट इज नाउन? यू नो, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड और अ स्टेट, isn't it? वाइस का मतलब क्या होता है? वाइस का मतलब होता है बुद्धिमान होना. ठीक है. अगर सपोज लेट मी गिव यू एग्जाम्पल. इफ आई से ही इज अ वाइस मैन. ठीक है. सो वाइस इज an adjective which is used before a noun, which means it is describing the men. Right, beta? So wise is describing the quality of the man, that how the man is, what is quality of man, that he is a wise man, like a good man, a smart man. ठीक है. इस तरीके से क्या है, वो उसकी क्वालिटी बता रहा है कि कैसा मैन है, स्मार्ट मैन है, कैसा मैन है, गुड मैन है. सो ऑल दीज एडजेक्टिव्स आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द क्वालिटीज ऑफ द नाउन. ठीक है. इस तरीके से तो यहाँ पर आप क्वेश्चन में देख सकते हो वाइसली. क्या यहाँ पर वाइस यूज़ करना चाहिए? क्या यहाँ पर हमें एक एडजेक्टिव की ज़रूरत है? नो, वी डोंट नीड अ एडजेक्टिव, बिकॉज यहाँ पर कोई ऐसा नाउन नहीं है जिसके बारे में हम डिस्क्राइब करना चाहते हो, जिसकी क्वालिटी के बारे में हम बताना चाहते हो. ठीक है. उसके बाद आते हैं वाइसली पर. वाइसली क्यों गलत है? वाइसली एक एडवर्ब है. फर्स्ट ऑफ ऑल, देर इज नो वर्ब ओवर हेयर जिसको वाइसली डिस्क्राइब कर रहा हो, इजंट इट? सबसे पहला रीज़न वाइसली यहाँ पर इसलिए नहीं आएगा. ठीक है. दूसरा रीज़न है, वाइसली का मतलब है, अगर हम बोलें कि इफ़ आई से ही थिंक्स वाइसली और इफ़ आई से ही वर्क्स वाइसली. ठीक है. तो वो सोचता है वाइसली, वो काम करता है वाइसली. ठीक है. तो इट इज़ अ वे ऑफ डूइंग समथिंग. तो वो किस तरीके से, वो देखो आप, ही थिंक्स वाइसली, वो क्या कर रहा है? ये एक एडवर्ब है, तो वो वर्ब थिंक को, लेट मी राइट इट फॉर यू. इफ आई से ही थिंक्स वाइसली. ठीक है. तो ये वाइसली क्या कर रहा है आपके? ये एक एडवर्ब है और ये आपके थिंक्स को क्या कर रहा है? और मॉडिफाई कर रहा है और डिस्क्राइब कर रहा है कि वो कैसा सोचता है. वो वाइसली सोचता है, वो बुद्धिमानी से सोचता है. ठीक है. सो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है. नाउ कम टू द नेक्स्ट वर्ड, दैट इज विजडम.
ठीक है. सो विजडम इज a noun which which signifies a state. ठीक है. तो wisdom is the correct word in the place of wisely. ठीक है. तो correct word क्या होगा इस sentence में? wisdom. ठीक है. तो wisdom का मतलब state होता है. तो क्या जैसे if I say if I give you the example, he has gained a lot of wisdom over the years. ठीक है. तो wisdom का मतलब होता है बुद्धिमत्ता, intelligence, the element of someone's character, isn't it? So यहाँ पर character की ही बात हो रही है, उसके एक element की बात हो रही है character के. So that's why we will say my friend is known for his wisdom as well as patience. So यहाँ पर noun की बात as a noun use होना है wise. So that's why we have written wisdom over here. I hope it is clear too. So the part of speech of wisdom is noun. You can write it like this. ठीक है. आपको incorrect word लिखना है, that is wisely. उसके बाद उसका correct word लिखना है, that is wisdom. You will write wisdom and उसकी part of speech लिखनी है, that is noun. Clear? Now move to the next question. That is let do whatever they want. ठीक है. देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से. ठीक है. let do whatever they want. यहां पर देखो क्या कुछ गलत है या कुछ एरर है. ठीक है. let do whatever they want. This is perfectly fine, but when you will see let, अगर आपने let के बारे में पढ़ा होगा अपनी क्लासेस में, तो आपको पता होगा कि how we use let. सबसे पहले what do you mean by let? let का क्या मतलब होता है? let का मतलब होता है बेटा to give permission or to allow. ठीक है. let का मतलब क्या होता है? let का मतलब होता है permission देना या अलाउ करना किसी को. हम बोलते हैं ना लेट हिम डू दैट और लेट हिम गो. ठीक है. उसको जाने दो, उसको वो करने दो. राइट बेटा. सो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर गिविंग परमिशन टू हिम दैट जो वो चाहता है उसको करने दो, जो वो चाहता है उसको, जहाँ वो चाहता है उसको जाने दो. राइट. सो व्हाट इज दिस? लेट इज यूज्ड टू गिव permission. Let is used to allow somebody to do whatever they want to. Right. So यहाँ पर जब भी हम let का यूज़ करते हैं तो हम let के साथ हमेशा क्या यूज़ करते हैं? एक ऑब्जेक्ट का भी यूज़ करते हैं. क्या यूज़ करते हैं? ऑब्जेक्ट का. तो दैट मीन्स let is always followed by an object. ठीक है. and also an infinitive without to. Okay, so as I've told you, these are infinitives to give, to wait. ठीक है. तो infinitives generally आपको किस तरीके से यूज़ करे जाते हैं? infinitives यूज़ करे जाते हैं like this, to give. Okay, this is to and this is verb. So what I'm trying to say is, जैसे हमारा let है, इसके बाद मैंने आपको बोला कि let के बाद हमेशा आपका ऑब्जेक्ट आती है, isn't it? So जैसे let me do this. Okay, तो let me. ठीक है. दिस इज लेट, दिस इज द ऑब्जेक्ट एंड दिस लेट एंड इसके बाद आएगी वर्ब. लेट मी डू दिस. डू. ठीक है. तो यहाँ पे वर्ब जो है किसके बिना टू के आ रही है. राइट. सो इसको भी हम इन्फिनेटिव बोलते हैं लेकिन विदाउट टू. दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब. सो दिस इज द काइंड ऑफ अ इन्फिनेटिव. ठीक है. तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे? यहाँ पर क्या आएगा? इन दिस सेंटेंस, पर्टिकुलर सेंटेंस, लेट डू वट एवर दे वॉन्ट. वट इज़ द मिसिंग वर्ड? द मिसिंग वर्ड इज देम. क्यों है देम मिसिंग वर्ड? जैसे कि मैंने आपको बताया कि लेट के साथ हमेशा ऑब्जेक्ट यूज़ होता है, तो हम इसीलिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट मिसिंग है तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे, दैट इज देम. ठीक है. अब आप पूछोगे कि मैम देम क्यों आया? बिकॉज बेटा हियर यू कैन सी वी आर टॉकिंग अबाउट द थर्ड पर्सन, दैट इज दे. दैट्स वाई वी हैव रिटन, वी हैव यूज्ड them here. ठीक है. अगर यहाँ पर we होता तो हम us यूज करते, isn't it? Like this we have used them. ठीक है. ये इसकी पार्ट ऑफ स्पीच क्या है them की? आप इसकी पार्ट ऑफ स्पीच भी लिखोगे तो इसकी पार्ट ऑफ स्पीच है, ये एक pronoun है. I hope you all know what is pronoun. So them is a pronoun. Clear? Okay. So move to the next question. All right. This is the question. They know about your plans. Do they? ठीक है. अब इस क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से देखो and try to figure out that
इसमें क्या गलत है, क्या मिसिंग है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द सेंटेंस केयरफुली, दे नो अबाउट योर प्लान्स, ठीक है। इसमें आपको कुछ भी गलत लग रहा है कि मतलब इसमें कुछ, देखो, दिस इज द सब्जेक्ट, दे नो इज द, this is the subject, they know is the verb, right, and about your plans is the what is the object, ठीक है। लुक एट द सेंटेंस, दे नो अबाउट योर प्लान्स। इस सेंटेंस में आपको कुछ भी गलत लग रहा है नहीं, ये सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट है, ठीक है। उसके बाद एक कॉमा है, यानी कि यहाँ पे आपके दो सेंटेंसेस है, पहला एक सेंटेंस, दूसरा एक सेंटेंस, सेपरेटेड बाय कॉमा, ठीक है। सो दे पहला सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट सेंस दे रहा है, इजंट इट। उसके बाद आपका एक दूसरा जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, डू दे, ये क्या है, ये आपका एक क्वेश्चन टैग्स है। क्वेश्चन टैग्स क्या होते हैं बेटा, जब हम किसी से पूछते हैं, हम क्वेश्चंस पुट अप करते हैं, तो हम इन क्वेश्चन टैग्स का यूज करते हैं, राइट। व्हेनेवर वी पुट क्वेश्चंस, व्हेनेवर वी आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम समवन, वी यूज दीज क्वेश्चन टैग्स, ठीक। ओके, तो यहाँ पर आपका इनकरेक्ट वर्ड कौन सा है, यहाँ पर आपका इनकरेक्ट वर्ड है डू, ठीक है। क्यों है डू इनकरेक्ट वर्ड, बिकॉज बेटा जब आपने क्वेश्चन टैग्स पढ़े होंगे तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, अगर क्वेश्चन टैग्स का जो आपका रूल होता है वो क्या होता है, अगर आपका देयर आर टू सेंटेंसेस, इजंट इट, जैसे मैंने आपको बताया कॉमा के बाद आपका क्वेश्चन टैग, राइट। अगर आपका सेंटेंस पॉजिटिव है, पॉजिटिव सेंटेंस है, उसके साथ हमेशा नेगेटिव क्वेश्चन टैग का यूज होता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर आपका सेंटेंस पॉजिटिव है तो आपका क्वेश्चन टैग नेगेटिव यूज होता है, और अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव है तो उसके साथ आपका पॉजिटिव क्वेश्चन टैग यूज होता है। इज इट क्लियर? अब पॉजिटिव नेगेटिव क्या है, व्हाट आई एम सेइंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव, इज इट व्हाट इज दिस? इसका मतलब होता है बेटा पॉजिटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस, व्हेन यू हैव स्टडीड टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, तो आपने पढ़े होंगे कि पॉजिटिव सेंटेंस क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। बेटा पॉजिटिव सेंटेंसेस आर द सिंपल स्टेटमेंट्स, इजंट इट, जो कि किसी ने कही, फैक्ट्स और स्टेटमेंट्स, राइट। नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं बेटा, जहाँ पर भी आपने वर्ड्स यूज करे लाइक नॉट, नेवर, लाइक दिस, तो वो सेंटेंस आपके नेगेटिव बन जाते हैं, जहाँ से आपको नेगेटिविटी मतलब आपको जहाँ पे कोई भी काम मना किया जाता है, राइट, ना का यूज होता है जहाँ पे, तो वो आपके नेगेटिव सेंटेंसेस हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपका जो सेंटेंस है वो क्या है, पॉजिटिव। दे नो अबाउट योर प्लान्स इज जस्ट अ स्टेटमेंट, ओके। यहाँ पर कोई नॉट का, नेवर का यूज नहीं किया गया है, सो दिस इज अ पॉजिटिव सेंटेंस, ठीक है। इसके साथ पॉजिटिव ही क्वेश्चन टैग नहीं आ सकता, डू दे इज अ पॉजिटिव क्वेश्चन टैग, राइट। सो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, डू की जगह इसका नेगेटिव क्या होगा, डोंट दे, ठीक है। तो हम क्या क्वेश्चन टैग यूज करेंगे, डोंट दे, ठीक है। अब बेटा मैंने आपको ये तो बता दिया कि उसमें पॉजिटिव ये रूल होता है, दिस इज द रूल, राइट। आई हैव टोल्ड यू दैट दिस इज द रूल, दिस इज द रूल, आप इसको याद कर लोगे एग्जाम में, बट नो, जस्ट डोंट, आप इसको याद मत करो, सिंपल, जस्ट डोंट रिमेंबर दिस थिंग, जस्ट इसको समझने की कोशिश करो, ठीक है। दैट ऐसा क्यों हो रहा है, व्हाई इज इट हैपनिंग, ओके। तो ऐसा क्यों हो रहा है, सी इसके पीछे लॉजिक क्या है, हम क्यों पॉजिटिव के साथ नेगेटिव क्वेश्चन टैग का यूज़ करते हैं और क्यों नेगेटिव के साथ पॉजिटिव क्वेश्चन टैग यूज़ करते हैं, ठीक है। ये कह रहा है दे नो अबाउट योर प्लान, ठीक है। वेट, सी इसने क्या कहा, इसने कहा दे नो अबाउट योर प्लान। सपोज देर इज अ पर्सन राम हु इज टॉकिंग टू सीता, ठीक है। तो राम इज सेइंग टू सीता दैट दे नो अबाउट योर प्लान्स. That means Ram is 80% sure that somebody, that is this third person, these third persons know about Sita's plan, right? 80% sure. सिर्फ वो सीता से ये चीज़ क्यों पूछ रहा है, वो सीता से ये चीज़ इसलिए पूछ रहा है फॉर कंफर्मेशन, राइट। वो सिर्फ कंफर्मेशन के लिए पूछ रहा है कि वो 20% स्टिल अनश्योर है इस बात के लिए कि क्या उनको सच में सीता का प्लान पता है या नहीं पता, ठीक है। दैट्स वाई फॉर द कंफर्मेशन ही इज आस्किंग दैट डोंट दे, क्या उनको नहीं पता, क्योंकि 80% ही इज कन्फर्म
कि उनको पता होगा, ठीक है। 20% ही इज कन्फर्मिंग फ्रॉम सीता दैट क्या उन्हें नहीं पता, ठीक है। सो दैट्स वाई वी हैव यूज्ड द नेगेटिव क्वेश्चन टैग ओवर है। इज इट क्लियर? ओके, सो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, डू की जगह हम लिख देंगे डोंट, ठीक है। ये एक क्या है, डू आपने बेटा जब वर्ब्स पढ़ी होंगी तो यू मस्ट बी अवेयर अबाउट दिस, इट्स अ वर्ब, राइट, इट्स अ वर्ब। एंड ये क्या है, व्हाट इज डू क्या है, वर्ब है, तो डोंट भी क्या होगा आपका, वर्ब होगा, ठीक है। एंड डोंट क्या है, एक कॉन्ट्रैक्शन भी है। कॉन्ट्रैक्शन मतलब जब हम दो चीज़ों को मिला देते हैं आपस में, दैट इज अ कॉन्ट्रैक्शन। जब कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं चीज़ें तो दिस इज डू नॉट का कॉन्ट्रैक्शन एंड दैट इज डोंट। क्लियर? इट्स अ वर्ब। फाइन, ओके, लेट्स move to the next question. I hope it is clear to you. It is very easy बेटा। It's अगर आपने thoroughly आपने इंग्लिश को पढ़ा होगा, these chapters आपने पार्ट ऑफ स्पीच के जितने भी चैप्टर्स हैं आपने पढ़े होंगे, तो you must be aware of this, ठीक है। आप आसानी से कर जाओगे ये। This is not a big deal at all, okay? Okay, now move to the next question. The next question says, the journey of 1,000 miles begins with a single jump, right? ये एक बहुत famous saying भी है that a journey of 1,000 miles, ये saying भी है बेटा कि that a journey of 1,000 miles begin with a single jump, ठीक है। आपने बहुत लोगों को सुना होगा बोलते हुए कि एक जर्नी ऑफ 1,000 माइल्स बिगिन विद अ सिंपल स्टेप। सपोज आई विल गिव यू द एग्जांपल, अगर आपको डॉक्टर बनना है, ठीक है, तो क्या आप सपोज अभी क्लास 6 में हो, क्या आप अभी से डॉक्टर बन जाओगे? No, you have to go for 7th standard, for 8th standard, for 9th standard. ठीक है, that means you need to take small steps, isn't it? You need to take small steps to be a डॉक्टर। यहाँ पर जो आपका जंप है या जो हमारा करेक्ट वर्ड होगा उसकी एक फिगरेटिव मीनिंग है। सो हियर what is the wrong word? The wrong word is jump. Why it is a wrong word? Why it should not be used here? Why we should not use here? Because jump का मतलब क्या होता है बेटा? jump का मतलब अगर आप देखो तो jump का मतलब होता है एक sudden movement, ठीक है, जो कि caused when somebody pushes to upwards direction, isn't it? स्टेप्स क्या होते हैं? स्टेप्स क्या होते हैं? आपके एक सिक्वेंशियल वे ऑफ वॉकिंग होता है, ठीक है, सिक्वेंशियल वे ऑफ डूइंग समथिंग, ठीक है, एक स्टेप दूसरा स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, इजंट इट? सो दैट्स वाई हम अपनी जर्नी बिल्कुल एकदम सडन जर्क से तो नहीं शुरू करते ना, हम अपनी जर्नी शुरू करते हैं एक छोटे छोटे स्टेप से। स्टेप हैज़ अ फिगरेटिव मीनिंग ओवर हियर। हमें रियलिटी में नहीं चलना, हमें उस पे से उसकी जस्ट वहाँ से मीनिंग उठानी है, उस हिसाब से हमें एक एक काम पूरा करना है, ठीक है। स्टेप इज़ अ वर्ब, इसका पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब। आई होप इट इज़ क्लियर दैट वाई वी हैव पुट स्टेप इंस्टीड ऑफ जंप, ठीक है बेटा। अगर मैं आपको सिंपल भी बता सकती थी दैट यहाँ पे जंप रॉन्ग है, स्टेप राइट है, एंड इट इज़ अ वर्ब एंड दैट्स इट, ठीक है। आपको आंसर जानना था, आपको मिल जाता। लेकिन बेटा सिर्फ आंसर जानना ही इम्पॉर्टेंट नहीं होता, इज़न्ट इट? इफ़ यू नो द आंसर लेकिन आपको उसका रीज़न ही नहीं पता दैट मैम वाई द जंप शुड नॉट कम हेयर, यहाँ पे जंप सही क्यों नहीं है, तब तक आप उसको समझ नहीं पाओगे। बेटा देखो, वेन एवर यू डू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, सो व्हाट यू नीड टू डू, सिर्फ आंसर ही उसका पता मत करना कि दैट ओके जंप का स्टेप होगा, दैट्स इट। यहाँ पर आप जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आपके क्वेश्चन सॉल्व करते समय ही आपका उसका वो जो आपका क्वेश्चंस सॉल्व करते टाइम ही बहुत सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ से आपको एग्ज़ाम का पैटर्न भी पता चल जाता है कि इस तरीके का पैटर्न एग्ज़ाम में आएगा, इस तरीके के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आएंगे, आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, बिकॉज बेटा सिलेबस इज़ टू वास्ट, आपको स्ट्रैटेजिकली पढ़ना है। तो स्ट्रैटेजीज बनाने के लिए आपको कौन हेल्प करेगा? ऑब्वियसली द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स विल गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट, राइट। यहाँ पे आपको पता चलेगा कि इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ पर आपका एक क्या हो गया, एक टॉपिक जो है रिवाइज हो गया, इजंट इट? यहाँ पे आपको थोड़ा सा ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है रिवाइज हो गया, आपको लगेगा ओके यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं तो ये मेरा एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया, तो मैंने यहाँ से ये क्वेश्चंस जो है पढ़ लिए, ठीक है। यहाँ से आपका एक टॉपिक क्लियर हो गया। दैट्स वाई आई एम टेलिंग यू ईच एंड एवरी रीजन दैट वाई स्टेप शुड कम एंड जंप शुड नॉट। क्लियर? नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन.
Okay, the next question is Ramesh, Renu are classmates. ठीक है, अब देखो, this is the wait, yeah, this is the subject, this is the verb, and this is the object, right? Here you can see Ramesh, Renu. In this subject, what is there? Two nouns are there placed together, right? लेकिन इन दोनों में कोई क्या नहीं है, कोई मतलब हमने जस्ट इनको प्लेस कर दिया है यहाँ पर एज इट इज, ठीक है। यहाँ पे इन दोनों को कोई मतलब नहीं बन पा रहा है, ठीक है। इसका मतलब हम दोनों की बात कर रहे हैं, रमेश रेणु, तो यहाँ पर मतलब इन दोनों को हमको जोड़ना है, ठीक है। यहाँ पर ये आपस में जुड़े हुए नहीं हैं, दे आर नॉट कंबाइंड टुगेदर। यहाँ पर ये दो नेमिंग वर्ड्स हैं, दो नाउन्स हैं जो कि आपस में कोई मीनिंग नहीं रख रहे हैं एक दूसरे के साथ, क्योंकि हमने इनको आपस में कोई ऐसा रीज़न नहीं दिया है कि ये कोई मीनिंग क्या करें, आपको बताएं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में जोड़ना है। तो फॉर कंबाइनिंग, what do we have in English for combining two words or combining two sentences? We have conjunctions. Yes, you are right, we have conjunctions. What are conjunctions? Conjunctions are the words used to join two sentences or two words together, isn't it? ये भी आपने पढ़ा होगा कि conjunctions किस लिए काम आते हैं। बहुत तरीके के conjunctions होते हैं, like because, and, or, like this, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, what is the missing word, and what is the correct word, correct sentence क्या होगा यहाँ पर, this Ramesh and Renu are classmates, right? After that, the part of speech of and is conjunction. Is it clear? यहाँ पे आप बोल सकते थे यहाँ पे और क्यों नहीं यूज़ हुआ, right? So यहाँ पर और कब यूज़ होता है, when we are talking about one particular person, right? अगर हम बोलें कि रमेश या रेनू मार्केट गए हैं, ठीक है, तो हम बोल रहे हैं या तो रमेश गया होगा या तो रेनू गई होगी, दोनों नहीं गए होंगे, ठीक है। वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली वन पर्सन, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये बोल रहा है कि वो क्लासमेट्स है, तो बेटा दोनों ही तो क्लासमेट होंगे ना, एक तो क्लासमेट नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसीलिए हमने यहाँ पर एंड यूज़ किया है। क्यों यूज़ किया है, इसीलिए एंड यूज़ किया है, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट बोथ द पर्सन्स, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट बोथ द पर्सन साइमल्टेनियसली वी यूज़ एंड विद इट, ठीक है। तो दैट्स वाई द एंड इज द राइट आंसर ओवर हियर एंड इट इज़ अ कंजंक्शन, ठीक है। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन। ओके, दिस इज द क्वेश्चन, alas we won the match, ठीक है। अब देखो बेटा, यहाँ पे we won the match is absolutely correct। यहाँ पर कुछ आपको ऐसे गलती दिखाई नहीं दे रही है, this is the subject, verb and object, right? उसके बाद आपको यहाँ पर दिखा एक नया वर्ड, right? alas, what is this alas? आपने ये alas क्या है, आपने क्या पढ़े होंगे, interjections, isn't it? ठीक है। तो इंटरजेक्शंस क्या होते हैं बेटा, इंटरजेक्शंस आपके वो वर्ड्स होते हैं व्हेन आपको कोई भी सडन क्या दिखाना हो, कोई भी सडन रिएक्शन दिखाना हो, ठीक है, आर यूज्ड टू एक्सप्रेस सडन फीलिंग्स और इमोशंस और रिएक्शन, राइट। तब हम इंटरजेक्शंस का यूज़ करते हैं, ठीक है। क्या क्या इंटरजेक्शंस होते हैं, लाइक अलास, हुर्रे एंड लाइक दैट, इजंट इट। यहाँ पर अगर आपने इंटरजेक्शंस पढ़े होंगे तो आपको ज़रूर पता होगा कि अलास का मीनिंग क्या होता है। क्या होता है अलास का मीनिंग, अलास का मीनिंग होता है एक्सप्रेसिंग व्हाट, सडन ग्रीफ, राइट, और कंसर्न, वेट, सडन ग्रीफ एंड और कंसर्न, राइट, और क्या, कंसर्न, इजंट इट। तो यहाँ पर बोला है, सेंटेंस बोल रहा है आपका वी वॉन द मैच, ठीक है, हम मैच जीत गए, ठीक है। तो क्या वो सडन ग्रीफ, क्या वो सडन कंसर्न, क्या वो सैड होंगे, नो, दे मस्ट बी हैप्पी, एंड व्हेन वी आर हैप्पी व्हाट डू वी से हुर्रे वी वॉन द मैच, राइट। सो दिस इज व्हाट, यहाँ पर क्या आएगा, द करेक्ट वर्ड विल बी, यहाँ पे इनकरेक्ट क्या है, alas, द करेक्ट वुड बी हुर्रे एंड इट इज अ इंटरजेक्शन। आई होप इट इज क्लियर टू यू, राइट। ओके, नाउ गेट बैक, नाउ move to the next question ahead. Okay, the next question is how many do you want, ठीक है। अगर हम बोलते हैं how many do you want, how many do you want, ठीक है,
कैसा, इसको सेंटेंस को ज़रा हम हिंदी में ट्रांसलेट करें तो क्या बोलेंगे, कैसा मनी तुम्हें चाहिए. तो what do we trying to ask? Are you getting the perfect sense from this sentence? No, you are not getting the perfect sense. कैसा मनी चाहिए? Why would I ask somebody that कैसा मनी चाहिए? क्या मैं क्या पूछ रही हूँ, मैं पूछ रही हूँ क्वांटिटी. ठीक है, आई एम आस्किंग द क्वांटिटी कि तुम्हें कितना मनी चाहिए, जस्ट टेल मी दैट, isn't it? So whenever we want to show whenever we want to describe the noun, whenever we want to show the quantity of the noun, description of the noun, quality of the noun, right, what do we use? We use adjectives, isn't it? तो that means यहाँ पे एक adjective की कमी है. वो क्या adjective है, क्या कौन से एडजेक्टिव की कमी है, उस एडजेक्टिव की जो कि हमें क्वांटिटी बताए. ठीक है, तो दैट्स वाई वी हैव यूज्ड मच हियर. ठीक है, मच क्यों यूज़ किया बेटा, क्योंकि हमने पूछा तुम्हें कितना मनी चाहिए. ठीक है, अगर हम बोलते हैं हाउ मैनी रुपीज़ डू यू वांट, ठीक है, अगर हम रुपीज़ की बात करते हैं तब हम क्या कहते हैं, तब हम मैनी का यूज़ करते हैं बिकॉज रुपीज़ आर काउंटेबल बट मनी इज़ नॉट अ काउंटेबल नाउन. सो दैट्स वाई वी हैव यूज्ड हाउ मच मनी डू यू हैव एंड इट विल बी प्लेस्ड बिटवीन हाउ एंड मनी. ठीक है, उसके बाद इसकी पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव. तो दैट्स वाई इट इज़ द करेक्ट वर्ड हेयर, द मिसिंग वर्ड हेयर इज़ मच. ठीक है. Okay, now move to the next question. Okay, the next question is when the going gets tough, the tough gets going. ठीक है बेटा, again this is a very famous saying. When the going gets tough, the tough gets going. राइट, ये अगेन आपका एक बहुत ही फेमस सेइंग है जिसका मतलब होता है व्हेन द सिचुएशन बिकम डिफिकल्ट द स्ट्रॉन्ग विल वर्क हार्डर टू मीट द चैलेंजेस. Isn't it? क्या बोला मैंने? When the situation becomes difficult, the strong will work harder to meet the situation. इसका मतलब क्या होता है बेटा, जब आपकी सिचुएशन बहुत ही डिफ़िकल्ट होती है, जब आपका बहुत ही टफ टाइम चल रहा होता है, मतलब सपोज अगर मैं बच्चों की बात करूँ तो आपको एग्ज़ाम्स बड़े टफ लगते हैं. Isn't it? Do you find exams tough or not? ठीक है, बहुत सारे बच्चों को लगते हैं, जो पढ़ते हैं उनको नहीं लगते, जो थोड़ा सा कम मेहनत करते हैं उनको डेफिनेटली लगते हैं. Isn't it? या सो जब आपको एग्ज़ाम्स जो हैं डिफ़िकल्ट लगते हैं तो आपको लगता है कि ओ माय गॉड दिस 1 वीक इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी. Right, beta. This 1 week is very difficult for me. How will I manage? I haven't studied that much to get a good marks in the exam. राइट, सो वो आपके लिए टफ टाइम हो गया बहुत ज़्यादा. ठीक है, तो उस टफ टाइम में सक्सीड कौन करेगा, एग्ज़ाम में पास कौन होगा, जिसने वर्क हार्डर किया होगा. इज़न्ट इट? जिसने पढ़ाई करी होगी बहुत अच्छे से वही जो है एग्ज़ाम में पास हो पाएगा. राइट, सो वही कहना चाह रही हूँ, जब आपका टाइम बहुत ही हार्ड है, जब आपका सिचुएशन बहुत ही डिफ़िकल्ट है, तो उस सिचुएशन में वही लोग सक्सीड कर पाते हैं जिन्होंने बहुत ही वर्क हार्ड किया होगा, जिन्होंने बहुत ही मेहनत करी होगी. राइट, सो दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस कोट. इजंट इट? सो यहाँ पर क्या गलत है बेटा? जस्ट लुक एट दिस सेंटेंस. इफ आई से व्हेन द गोइंग गेट्स टफ, जब सिचुएशन टफ होगी, जब सिचुएशन टफ होगी. ठीक है, तो दिस इज द सिचुएशन, दिस इज सिंगुलर, दैट्स वाई वी हैव यूज्ड गेट्स हेयर. ठीक है, वर्ब में हमने एस का यूज़ करा है बिकॉज सिचुएशन इज अ सिंगुलर ना. राइट, उसके बाद द टफ गेट्स गोइंग. तो टफ बेटा, हम बहुत सारे पर्सन की बात कर रहे हैं. ठीक है, बहुत सारे पीपल की बात कर रहे हैं. दैट्स वाई वी विल नॉट यूज़ गेट्स हेयर, दैट्स वाई वी विल यूज़ ओनली गेट, बिकॉज हम whenever we talk about the plural things we do not add s to the verb, right? But here the s has been added to the verb like gets, isn't it? यहाँ पे इसीलिए gets नहीं आएगा. The correct word will be get. The incorrect word is gets and the correct word will be get and it is a verb. It is a irregular verb. Irregular verb क्या होती हैं? Irregular verbs, wait. Irregular verb क्या होती हैं? जिनके तीनों फॉर्म, ठीक है, जिनकी वर्ब की तीनों फॉर्म डिफरेंट होती है, दैट आर नोन एज इरेगुलर वर्ब. लाइक गुड, बेटर, बेस्ट. राइट, all these are
this word good is having different forms. Like the second form is different from first form, third form is different from both the forms. So this is the irregular verb जहाँ पर सारी की सारी forms आपकी different होती हैं, isn't it? So जैसे laugh, laughed, laughed, this is a regular verb. ठीक है, क्यों? Because यहाँ पे laugh की दोनों जो forms हैं verb की वो आपकी similar हैं, that's why it's a regular verb. ठीक है, तो यहाँ पर get आपका irregular verb है, laugh जो मैंने बताया वो regular verb है. ठीक है, okay. Now मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, यहाँ तक ही थे हमारे ये क्वेश्चंस. जो आपका 8th क्वेश्चन है इज स्टिल हेयर ओनली. फाइन. आफ्टर दैट द नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज fill in the blanks using appropriate idioms. Okay, fill in the blanks using appropriate idioms or phrases. Each idiom or phrase must be formed by using the word given in the bracket. ठीक है, आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पे आपको idioms और phrases का यूज़ करना है. जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, I've told you earlier this thing also, that whenever you read some question, try to analyze it, that what that question demands, right? What that question demands. वो question हमसे क्या demand कर रहा है. अगर आपने ये समझ लिया, आपने ये analyze कर लिया, उसके बाद आपको answers देने में बहुत ही हेल्प होगी, राइट? यू विल राइट द आंसर्स वेरी ब्यूटिफुली. ठीक है, अगर आपने क्वेश्चन समझ लिया तो उसके अकॉर्डिंग आप आंसर्स दोगे तो आपको बहुत ही हेल्प करेगा आपके नंबर गेन करने में. क्लियर? ओके, तो यहाँ पर कह रहा है बेटा, इन जो आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं, यहाँ पर आपको एप्रोप्रिएट ईडियम्स और फ्रेजेस का यूज़ करना है, उनका इस्तेमाल करना है. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल अब आपको पता तो चल गया कि ईडियम्स और फ्रेजेस का इस्तेमाल करना है, लेकिन बेटा ईडियम्स और फ्रेजेस होते क्या है? ठीक है, व्हाट आर दे? ठीक है, तो बेटा जैसे हम कई बार क्या होता है, हम एक सेट ऑफ वर्ड्स ले लेते हैं जिनका अगेन वी विल यूज़ a figurative meaning of that words, right? Not the real meaning. ठीक है, suppose ये आपका एक idiom है, in the pink of health, right? आपका क्या idiom है? in the pink of health. ठीक है, तो यहाँ पर आपका सच्ची में हेल्थ पिंक नहीं हो रही. अगर मैं इसके वर्डिंग्स पे जाऊँ, इसके मीनिंग पे जाऊँ, इन द पिंक ऑफ हेल्थ, तो यहाँ पे क्या होगा कि सच्ची में पिंक हो रही है क्या? हेल्थ क्या पिंक कलर की हो रही है? नो, इट हैज़ अ फिगरेटिव मीनिंग, राइट? व्हाट इज़ दैट फिगरेटिव मीनिंग? यहाँ से हम कुछ और, हमने एक सेट ऑफ वर्ड्स दे दिया लेकिन उसका मीनिंग कुछ और है, उससे मिलता जुलता है लेकिन उस कुछ और है, राइट? सो इस तरीके के वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं? इस तरीके के ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं? ईडियम्स बोलते हैं, राइट? ओके, सो यहाँ पर आपको इन दीज पर्टिकुलर सेंटेंसेस देयर इज अ वर्ड इन अ ब्रैकेट, राइट? क्या है? वर्ड दिए गए हैं आपको ब्रैकेट में, जिनकी हेल्प से विद द हेल्प ऑफ दीज वर्ड्स यू नीड टू यूज द ईडियम्स, यू नीड टू फ्रेम द ईडियम ऑफ फ्रेज एंड यूज इन योर सेंटेंस. इज इट क्लियर टू यू? जो आपको वर्ड दिया गया है वो आपके इडियम में मेंशन होना चाहिए. अगर आपके इडियम में वो मेंशन नहीं है या आपके फ्रेज में वो मेंशन नहीं है, देन क्या है? देन आपका इडियम और फ्रेज इज रॉन्ग. ठीक, ओके. जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो बेटा, पिंक कलर, ओके, पिंक इज देयर, द वर्ड इज वाइट इज देयर, अगेन द वर्ड इज रेड इज देयर इन द ब्रैकेट, यू कैन सी, राइट? तो ये क्या है बेटा? जब आप ईडियम्स पढ़ते हो तब आप ईडियम्स कई तरीके से पढ़ते हो, राइट? किस तरीके से पढ़ते हो? मतलब कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है ईडियम्स आप सिंपली ऐसे नहीं पढ़ सकते कि आपने ईडियम्स की बुक खोली एंड जस्ट यू स्टार्ट रीडिंग इन देम. ठीक है, आपको ऐसे याद ही नहीं हो सकते, यू कैन नेवर रिमेंबर देम. ठीक है, तो आप कैसे पढ़ते हो? आप उनको कैटेगरीज में तोड़ के पढ़ते हो. ठीक है, किस तरीके से तोड़नी है उनको कैटेगरीज में? कुछ लोग अल्फ़ाबेटिकली पढ़ते हैं, मतलब जैसे जैसे ए से कुछ वर्ड्स आते हैं या बी से कुछ आते हैं, जैसे ब्रेक, ब्रिंग. ब्रेक से रिलेटेड जो भी आपके इडियम्स हैं आप उनको पढ़ लीजिए, ब्रिंग से रिलेटेड जो भी इडियम्स हैं आप उनको पढ़ लीजिए. ठीक है, अल्फ़ाबेटिकली. ओके, कुछ हम आपको क्या होता है, ईडियम्स जो है कैटेगरीज में भी डिवाइडेड होते हैं. ठीक है, किस तरीके से वो कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं? वो होते हैं जैसे आपने कैटेगरीज में डिवाइड करा, लाइक एज इज़ वन कैटेगरी, राइट? एज क्या है? आपकी एक कैटेगरी है. इसमें आपके जैसे ईडियम आ गया
एक्ट योर एज, एक्ट योर एज, ठीक है, एक्ट योर एज। इस इडियम का मतलब क्या होता है? स्टॉप बीइंग चाइल्डिश एंड बिहेव इन अ मैच्योर वे, राइट। इसी तरीके से हमारा आ गया दूसरी कैटेगरी होती है जैसे बॉडी, ठीक है। तो बॉडी से रिलेटेड जितना भी बॉडी पार्ट्स होते हैं उनसे रिलेटेड जो भी उसमें वर्ड्स आएंगे ईडियम में, वो सारे ईडियम्स इस कैटेगरी के अंदर होते हैं। लाइक अप इन आर्म्स, ठीक है, अगर मैं बोलूँ ये वाला ईडियम अप इन आर्म्स, ठीक है, इसका मतलब होता है वेरी एंग्री होना, ठीक है, बहुत ही गुस्सा करना, ठीक है। इसी तरीके से बेटा इस बार RIMC ने क्या किया है, अगर आपने कैटेगरी पढ़ी होगी कलर, ठीक है, कलर्स वाली कैटेगरी में जितने भी ईडियम्स हैं, मतलब कलर्स मतलब जैसे पिंक, रेड, ब्लू, वाइट, इस तरीके के कलर्स जो है आपके इनसे रिलेटेड जो ईडियम्स हैं, ठीक है, तो अगर आपने वो पढ़े होंगे तो आपको यहाँ पर बहुत ही बेनिफिट हो गया होगा। तो इसीलिए RIMC ने यहाँ पर कौन सी कैटेगरी उठा दी? कलर वाली कैटेगरी उठा दी, और उसी से आपको बहुत सारे ईडियम्स दे दिए। इज इट इट? सो यहाँ पर पहला वर्ड है आपका पिंक, ठीक है, पहला वर्ड क्या है आपका? पिंक, ठीक है। दिस इज अगेन अ कलर, दिस इज अ कलर, राइट। उसके अब आपको क्या सोचना है? अब आपको सोचना है कि पिंक से रिलेटेड क्या क्या ईडियम्स हमने पढ़े थे, ठीक है, ओके। अब आपको सोचने तो है, लेकिन उसको आपने क्या करना है? इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग पुट करना है, ठीक है। आप पिंक से रिलेटेड सिर्फ वही इडियम लिख सकते हो जो इस पर्टिकुलर सेंटेंस को में परफेक्टली फिट होगा, ठीक है, जो इसकी मीनिंग से परफेक्टली मैच करेगा। क्लियर? तो यहाँ पर सेंटेंस को ज़रा देखते हैं। सेंटेंस क्या कह रहा है? सेंटेंस कह रहा है आपका अबाउट अ वीक अगो he was down with fever, he is now dash. Now you need to choose an idiom. So you need to make an idiom with the help of pink which matches the meaning of this sentence with the sense of this sentence. All right, तो यहाँ पे सेंटेंस कह रहा है अबाउट अ वीक अगो, कुछ वीक पहले, एक वीक पहले, ठीक है, ही वॉज डाउन विथ फीवर, वो डाउन था फीवर से, मतलब उसको बुखार आ रखा था। एक वीक पहले तक क्या था? उसको बुखार आ रखा था, वो फीवर से डाउन था, ठीक है। नाउ ही इज़ फाइन, ठीक है, वो क्या बोलना चाह रहा है कि वो एक हफ्ते पहले जो है वो बीमार था, लेकिन अब वो ठीक है, ठीक है। तो अब आप एक ऐसा इडियम सोचोगे जिसका मतलब है कि वो, या अब वो बिल्कुल फाइन है, जिसका मतलब क्या है? अब वो बिल्कुल फाइन है। तो ऐसा इडियम कौन सा है? आप सोचोगे जो आपने पढ़ा, ऐसा इडियम क्या है? ऐसा इडियम है इन द पिंक ऑफ द हेल्थ, इन द पिंक ऑफ हेल्थ। इसका मतलब क्या है बेटा? इसका मतलब है वेरी हेल्दी और इन गुड एक्सीलेंट कंडीशन, राइट। बहुत ही अच्छी हेल्थ हो जानी या वेरी हेल्दी हो जाना, ठीक है, इसका मतलब ये है। तो यहाँ पर मैंने बोला ना ही इज़ नाउ हेल्दी, ही इज़ नाउ वेल। तो जो इसका सेंस जिस ईडियम में आ रहा होगा, हम वो वाला ईडियम यूज़ करेंगे। तो इस जो ईडियम है इन द पिंक ऑफ हेल्थ का मीनिंग है हेल्दी हो जाना। दैट्स व्हाट वी नीड हेयर, तो दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड दिस पर्टिकुलर ईडियम हेयर। इज इट क्लियर टू यू? आई होप इट इज़ क्लियर। ओके. Okay, now just move to the next question. The next question is, Vikram never showed dash in his life. He was very brave. The word in the bracket is white, isn't it? क्या है हमारा word? White. Okay. Now just आप सोचो कि वाइट से क्या बन सकता है, क्या ऐसा इडियम है जो कि इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के, इस पर्टिकुलर सेंटेंस के सेंस से मैच करेगा, ठीक है। विक्रम वॉज शोड डैश इन हिज लाइफ, ही वॉज वेरी ब्रेव, ठीक है। अब आप इस सेंटेंस को जब पढ़ोगे, ही वॉज वेरी ब्रेव, ठीक है, इससे आपको क्या पता चल रहा है विक्रम के बारे में? आपको इस सेंटेंस से ये पता चल रहा है कि विक्रम के बारे में कि विक्रम जो है एक बहुत ही ब्रेव बॉय था, ठीक है। वो कभी भी क्या नहीं करेगा, वो कभी भी डर के नहीं भागेगा, या वो कभी भी गिव अप नहीं करेगा, ठीक है। आपको ऐसा इडियम ढूंढना है जिसका मीनिंग है गिव अप करना, ठीक है। तो ऐसा आपको ढूंढना तो है ऐसा कि जिसका मतलब है गिव अप करना। ऐसे बहुत सारे इडियम्स है जिसका मतलब है गिव अप करना, लेकिन कौन सा इडियम ढूंढना है जिसमें वाइट का इस्तेमाल हो, जिसमें वाइट वर्ड आए, ठीक है। तो ऐसा इडियम कौन सा है? ऐसा इडियम है अ वाइट फ्लैग, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे? विक्रम नेवर शोड अ वाइट फ्लैग इन हिज लाइफ, ही वॉज वेरी ब्रेव, इज इट इट?
वाइट फ्लैग का मतलब क्या होता है, इस इडियम का मतलब होता है टू इंडिकेट दैट यू हैव बीन डिफीटेड एंड यू वांट टू गिव अप। अब वाइट फ्लैग का मतलब ये होता है, इस यहाँ पे हमने क्यों ये यूज़ करा है, क्योंकि यहाँ पे देखो नेवर है, वो सेंटेंस में बोल रहा है कि विक्रम ने कभी भी वाइट फ्लैग शो नहीं करा अपनी लाइफ में, क्योंकि वो एक बहुत ब्रेव इंसान है। तो वाइट फ्लैग शो ना करने का मतलब उसने कभी भी ये इंडिकेट नहीं करा कि वो डिफीट हो गया है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टीचर डैश when the naughty boy disturbs others in the class। ठीक है, here the word is read। यहाँ पे क्या है वर्ड, यहाँ पे वर्ड है read। ठीक है, now read the sentence carefully। The teacher dash when the naughty boy disturbed others in the class। Now just get back to your classes, right? कैसे कैसे जाओगे आप अपनी क्लासेस में, राइट? आई वॉन्ट टू से दैट कि अपनी क्लासेस के टाइम याद करो, आपकी क्लासेस में क्या हुआ करता था। सपोज देयर इज़ अ नॉटी स्टूडेंट इन योर क्लास, राइट, जो बहुत ही बात कर रहा है, बहुत ही डिस्टर्ब कर, व्हेन टीचर इज टीचिंग एनी चैप्टर, और वो जो बच्चा है वो बहुत ही बात कर रहा है, तो वो टीचर क्या हो जाती है बेटा, टीचर बहुत इरिटेट हो जाती है, इज़न्ट इट? टीचर को बहुत गुस्सा आता है, फिर वो उस बच्चे को डांटती है, राइट? सो यहाँ पर कि क्या कहना चाह रहा है, द टीचर डैश व्हेन द नॉटी बॉय डिस्टर्ब्स अदर्स इन द क्लास। जब नॉटी बॉय ने बहुत सारे बच्चों को क्लास में डिस्टर्ब कर दिया, वो बहुत बोले जा रहा है, बहुत बात किए जा रहे हैं, तो टीचर ऑब्वियसली क्या, एंग्री होगी, इज़न्ट इट? क्या होगी, एंग्री ही होगी ना वो। ठीक है, तो अब आपको एक ऐसा ईडियम ढूंढना है जिसका मीनिंग हो एंग्री होना, राइट? लेकिन कैसा ईडियम होना चाहिए, वो उसमें रेड आना चाहिए, रेड का इस्तेमाल होना चाहिए, रेड वर्ड का, राइट? तो ऐसा ईडियम क्या है, सॉ रेड। अब सॉ रेड का मतलब क्या होता है, सॉ रेड का मतलब होता है बहुत ही गुस्सा हो जाना। ठीक है, तो what is this? The teacher saw red when the naughty boy disturbed others in the class। टीचर बहुत गुस्सा हो गई जब naughty boy ने क्या कर दिया, सबको डिस्टर्ब कर दिया क्लास में। क्लियर? now move to the next question। Clear? Okay, the next question is without the principal's permission we cannot organize the tournament। If we request him he will definitely give us dash। ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं इस सेंटेंस में, सेंटेंस बोल रहा है आपका, अगर वो कहना चाह रहे हैं कि अगर उन्हें कोई टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करना है तो दे हैव टू टेक द परमिशन। ठीक है, ओके, इफ़ वी रिक्वेस्ट हिम, ठीक है, अगर हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे तो ही विल डेफिनेटली गिव अस डैश। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं कि विदाउट प्रिंसिपल की परमिशन के हम कोई भी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम उनके पास जाएं, हम उनसे रिक्वेस्ट करें तो वो डेफिनेटली हमें क्या करेंगे, परमिशन दे देंगे। ठीक है, तो अब हमें कैसा ईडियम ढूंढना है बेटा, हमें कैसा ईडियम ढूंढना है जहाँ पर हम बताएं कि अप्रूवल, जहाँ पे हमें किसी का अप्रूवल, जिसका मतलब हो अप्रूवल देना, राइट? यहाँ पे हमें वर्ड दिया गया है नॉड, हम एक ऐसा ईडियम ढूंढेंगे जहाँ पर नॉट वर्ड का यूज़ करा गया हो और उस ईडियम का मतलब हो अप्रूवल। तो यहाँ पर ईडियम होगा और द फ्रेज होगा आपका द नॉट, इसका मतलब होता है अप्रूवल देना, राइट? अप्रूवल देना। Clear? All right. Now get back to the next question. Now move to the next question. Okay. The next question is, he is dash, he might appear to be rude but he is a good person। ठीक है, तो अगर आप इसका दूसरा सेंटेंस पढ़ेंगे तो आपको इससे क्या पता चल रहा है बेटा, इससे आपको ये पता चल रहा है कि he appears to be rude but he is a good person। ठीक है, हम सपोज एक पर्सन की बात करें, सपोज देयर इज अ पर्सन राम, आपका कोई फ्रेंड है जिसका नाम है राम। ठीक है, उसके बारे में बहुत रूमर्स हैं दैट ही इज़ वेरी रूड। वो कभी कभी जो है मतलब उसका वे ऑफ टॉकिंग जो है वो बहुत ही, कभी कभी वो ऐसे बात कर देता होगा कि उसके बारे में रूमर्स क्रिएट हो गई होंगी कि दैट ही इज़ अ वेरी रूड पर्सन एंड ऑल। ठीक है, लेकिन वो अगर जो उसके रियल में फ्रेंड्स होंगे उनको पता है कि वो एक बहुत ही गुड पर्सन है, राइट? ही इज़ वेरी गुड पर्सन। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर आपको एक ऐसा इडियम ढूंढना है जो कि बताए आपको कि somebody is rumored of that he is rude but actually he is a right or a good person। तो ऐसा इडियम क्या है जिसमें ब्लैक का इस्तेमाल होता है, ब्लैक वर्ड का, तो ऐसा
इडियम है आपका क्या, अब एज ब्लैक एज ही इज पेंटेड, तो हम क्या यूज करेंगे, ये वाला इडियम, इसका मतलब है ही इज नॉट एज ब्लैक एज ही इज पेंटेड, ही माइट अपियर टू बी रूड बट ही इज अ गुड पर्सन। तो एज ब्लैक एज ही इज पेंटेड का मतलब क्या होता है, ही इज नॉट द वे ही इज पेंटेड, ठीक है, मतलब वो इतना रूड नहीं है जितना कि तुम लोग उसको पोर्ट्रे करते हो, ठीक है, जितना कि लोग उसे समझते हैं वो रूड इतना भी रूड नहीं है, ही इज अ गुड पर्सन बाय हार्ट। ओके, तो दैट्स व्हाई दिस इज द करेक्ट phrase or idiom we can use over here, right? Okay, now move to the next question. The underdog dash a stunning victory, ठीक है, तो अंडरडॉग किन्हें कहते हैं बेटा, अंडरडॉग किन्हें कहते हैं, जो कि हमें लगता है कि नहीं कर पाएंगे, ठीक है, लेकिन वो कर जाते हैं, इजंट इट? ओके, लाइक आपके स्कूल में कोई ऐसा बच्चा होगा जो पहले तो दिखाता होगा कि नो नो आई कांट डू इन द वेल इन द एग्जाम एंड ऑल, बट आफ्टर दैट ही स्कोर गुड मार्क्स इन इट, इजंट इट? सो यहाँ पर आपको एक ऐसा ईडियम यूज़ करना है, ऐसा फ्रेज़ यूज़ करना है जिसमें पुल आता हो, जिसका मतलब क्या हो, अकम्प्लिश करना, किसी भी चीज़ को जीत लेना, ठीक है, तो यहाँ पर हमने बोला है द अंडरडॉग पुल्ड ऑफ अ स्टनिंग विक्ट्री, मतलब उसने अकम्प्लिश करा स्पेशली इन द फेस ऑफ डिफ़िकल्टीज और एट द लास्ट टाइम, ठीक है, उसने खींच के ले आया वो अपने पास विक्ट्री, इजंट इट? पुल्ड ऑफ का मतलब वो बिल्कुल उसने अकम्प्लिश कर दिया, खींच के ले आया वो अपने पास विक्ट्री, अकम्प्लिश करना, ठीक है, डिफ़िकल्ट टाइम्स में, इज इट क्लियर? ओके, now move to the next question. The next question is the actor dash drinking when his movies did not do well. जब एक्टर की मूवीज अच्छी नहीं चलती तो वो क्या करता है, वो स्टार्ट डूइंग समथिंग, ठीक है, हमें टेक वर्ड से एक इडियम या फ्रेज ढूंढना है, तो हमने ढूंढ लिया क्या है, टुक टू, इसका मतलब होता है टू मेक अ हैबिट ऑफ, ठीक है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे द एक्टर ने क्या बोल दिया, उसकी एक हैबिट बन गई है ड्रिंक करने की, जब उसकी मूवीज अच्छी नहीं जाती तो वो ड्रिंक करने लगता है, दैट मीन्स ही हैव मेड दिस अ हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग, ठीक है, वेन एवर हिज मूवीज डू नॉट डू वेल, ठीक है? ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज धोनी प्लान टू डिसीव द बैट्समैन. ठीक है, धोनी का प्लान बैट्समैन को डिसीव करने का क्या हो गया, काम कर गया. तो हमें क्या बोलना है, ऐसा फ्रेज ढूंढना है जो हम बोलेंगे कि काम कर गया उसका प्लान. हम बोलते हैं ना पेज ऑफ, राइट. तो यहाँ पर हमने इसीलिए यूज़ करा कौन सा वर्ड, पे. सी बेटा, यहाँ पर आपका जैसे टेक हमने यहाँ पे यूज़ करा टुक टू, ठीक है. यहाँ पे हमने यूज़ करा पुल, दिया गया था पुल्ड ऑफ. ओके, राइट. तो हमने यहाँ पर क्यों ऐसे फ्रेजेस यूज़ करे, हमने पुल ऑफ क्यों नहीं यूज़ करा, हमने क्यों पुल ऑफ यूज़ नहीं करा, हमने क्यों टेक टू यूज़ नहीं करा, हमने क्यों पुल्ड ऑफ यूज़ करा, सॉरी, हमने क्यों पुल्ड ऑफ यूज़ करा, हमने क्यों टुक टू यूज़ करा. ठीक है, हमने ये यूज़ क्यों करा, बिकॉज द सेंटेंस डिमांड्स दैट. वाई इट डिमांड, बिकॉज उनका टेंस वही है, बिकॉज दे आर इन द पास्ट टेंस. दैट्स वाई वी हैव यूज्ड पुल्ड एंड टुक, द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, राइट. दैट्स वाई वी हैव यूज्ड दीज टू. ठीक है, ओके. सिमिलरली हियर द सेंटेंस इज इन दी, यहाँ पे भी, क्योंकि जो धोनी का प्लान है डिसीव करने का बैट्समैन को, बेटा डिसीव का मतलब क्या होता है, डिसीव का मतलब होता है टू गिव अ मिस्टेकन इम्प्रेशन, राइट. उसको थोड़ा उसने क्या कर दिया, उसको उसने थोड़ा भ्रमित कर दिया, राइट. इफ़ यू से इन हिंदी, तो उसको उसने भ्रमित कर दिया. ओके, बैट्समैन को उसने थोड़ा भ्रमित कर दिया अपने कुछ भी एक्शन से, राइट. डिसीव कर दिया उसको. तो ऑलरेडी मैच हो चुका है, ऑलरेडी वो बैट्समैन को डिसीव कर चुका है. सो दैट मीन्स इट इज़ अ पास्ट टेंस की बात हो रही है. तो दैट्स वाई वी हैव रिटन पेड ऑफ, इजंट इट. पेड ऑफ का मतलब होता है, क्या होता है पेड ऑफ का मतलब, उसको डिसीव करके जो भी हम चाहते थे हमें वो मिल गया, राइट. ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज he fainted for a while when he fell down. Very soon he, हमें क्या बोलना है, कम से बनाना है. तो वेरी सून ही केम टू. अगेन हमने केम यूज़ करा सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब बिकॉज द सेंटेंस इज इन पास्ट टेंस. क्लियर. सो इसका मतलब होता है, क्या होता है,
वापस से to become conscious. ठीक है, so that's why we have used this sentence. So that's all, beta. We have completed our two questions, that is question number 8 and question number 9, in a very detailed manner. Okay, as I have told you earlier also, I can tell you only the answers also. That is not a big task, that is just 15-minute task, right? I can tell all the answers and you can just know the answers and that's it. लेकिन हमें सिर्फ आंसर जान के क्या करना है, isn't it? We have to understand those why this answer is right and why this answer is wrong. We must know this thing, right? अगर हमें ये पता नहीं होगा तो हम आगे कैसे उस चीज़ को याद रख पाएंगे, राइट? अगर हमें समझा नहीं होगा तो वही मैं कह रही हूँ अगेन, आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स करते हो तो आपका साथ साथ उन क्वेश्चंस जब आप गलती करते हो उनसे सीखते हो तो आपका वहाँ पे एक टॉपिक तैयार होता जाता है, राइट? उस टॉपिक में से आपको जो वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो आपके तैयार होती जाती हैं, जो कि पेपर में आ सकती है किसी ना किसी वे में, राइट? सो दैट्स ऑल फॉर द डे. I will be posting further videos of further questions very soon. Okay, so stay tuned to our channel and please like, share and subscribe our channel. Okay, if you like the video, please like the video. Okay, and that's it. Just have a nice day. Goodbye.